Okay. and section number 42 to 49. Okay. क्या है important? Something would you like to share? So there is a lot of points about cleanliness, Okay. disposal of waste, ventilation, temperature, canteen scratches. तो क्रैच कब required है? Wherein more than 30 women workers are employed. Okay. And Hi Apurva. Hello, sir. Good evening. Good evening. All good? Yes. all good. प्रेरणा साइलेंट मोड में है, ऐसा उसका मैसेज। Yeah, Garvita, you were saying something. so about sketches, there are a lot of points written in the rules, like sketches shall not be situated in close proximity to any part of factory where obnoxious fumes, dust, odors are given off, excessively noisy processes are carried on. Okay. Height of room shall not be less than 12 feet from floor. Okay. And shall not be less than 20 square feet of floor area for each child to be accommodated. Okay. Chief inspector may exempt any factory from compliance if satisfied that if he is satisfied that no sufficient space available for provisions of a playground. Okay. There are points about washroom and supply of milk and refreshments also. Okay. Floor and internal walls of height of 3 feet should have smooth impervious surface. One basin, similar vessels for every 4 children accommodated. Source of water should be capable of yielding at least 5 gallons of water a day for each child. Okay. This you are reading the rules, right? Right, sir. Okay. And which state? Delhi. Delhi. Fair enough. बाकी कोई यूपी का पढ़ा कि नहीं पढ़ा किसी ने? तृप्ति जी, अपूर्वा जी, वंशिका जी. Sir, I had already shared in the previous class about Jharkhand. Okay. Okay. So बाइज्जत बरी किया आपको. Now in crèche there is point. crèche कब compulsory है? Where more than 30 women are employed. Okay. Now it is about number of women and not about number of mothers or number of children. See, this is how we need to interpret. So crèche is what? It's an Anganwadi, right? Okay. What is the purpose of crèche in any organization? क्यों होना चाहिए? Sir, to connect with the locals, to go to their means to connect to the means decentralization है basically है, ताकि जो public है उसको account में लिया जा सके, उनसे connect किया जा सके. So crèche or Anganwadi? Anganwadi. No, I'm talking about crèche. I'm saying that crèche is what? It's a kind of Anganwadi. But what is the logic of having a crèche in any industry? Why it is required?
क्या उसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है? What could be the intent? You read the So rule, that- you read the act, so you said 30 women होगा तो crèche होना चाहिए, है ना? Now first thing is that it's about women, right? Not about children, not about mothers. That is one thing, right? And second thing is why any such facility is required. So particularly crèche, why it is required? क्या उसका intent या logic हो सकता है उसके पीछे? so that mothers can take care of their children. Okay, They don't have to take leave to take care of their small children at the around the age of 6 years. perfect, perfect. So the intent is that because of a small kid at home, you need not stay at home. So intention is that we will take care of those small kids. The company will take care of the kids, but then you should not remain absent from the work. So that is the intent. Now this number may vary. कहीं पे 30 होगा, कहीं 50 होगा, कहीं 20 हो सकता है. Okay, in some industries they may compulsorily tell whether it is one female or 10 female, you must have a crèche. Working father, single father है, बच्चे को कहाँ छोड़ के आएगा? So then in such case they can have a crèche which can be a mandate from the appropriate government. Okay, great. So if you have made this document, you can put up in the group also for others learning. So the information can be shared with everybody. क्या हुआ पूर्व, मुंह क्यों बिगड़ा? बात पसंद नहीं आई या सुनाई नहीं दिया? नहीं सर, आ गई. Okay. Anything else that we discussed and you were supposed to do? Anything that you did which we did not discuss? Okay. अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, कोई जहमत लेनी नहीं है. Okay. मैम क्या टॉपिक ले रहे हैं? Compensation and benefit ना? Yes, sir. Compensation. Okay. So it is about what? नोट्स मत रेफर करो, ऐसे ही जो भी दिमाग में आता है बताओ. The rewards that employee gets for their performance. in the job. Okay. What else? बाकी लोगों का आज मौन व्रत है. सैटरडे को बात नहीं करते, ऐसा कुछ है? And then the benefits of those rewards, like in equity of the company or the institution. Okay. So it's all about how salary can be structured, how compensation can be given, and I don't know if ma'am might have covered Maslow's theory. Maslow's theory of Sir, we had only one class. I mean, we were supposed to have 2 classes for Saturday, Sunday, but we could have just 1 class, so maybe ma'am could have left that. भगवान आपकी इच्छा पूरी कर देंगे कल. And sir, like one more example she gave, that company nowadays, for example, in Infosys, they are not hiring people from IIMs or big institute because they demand more. And they are hiring from means local people, and then they are training, because अगर वो लोग IIM से भी hire करते तो training देना ही है, तो मतलब उतने ज़्यादा बड़े institute से नहीं लेते हैं, छोटे institute से ही लेते हैं, training provide करते हैं to get the output. So I mean, ma'am will continue tomorrow. So there is one theory called Maslow's need hierarchy theory. Okay, that is one base for deciding on compensation and reward mechanism. There is one more theory called
हाइजीन एंड मोटिवेशन थियरी। तो ये सब चीजें हैं, इवन इफ आई एम श्योर मैम विल बी कवरिंग, बट अदरवाइज यू कैन ऑल्सो रीड एंड रेफर, है ना। एट एवरी लेवल people have different intention to work, or there are different factors that motivate individuals, है ना। So that Maslow's has defined 5 level, हर लेवल पे आदमी का रिक्वायरमेंट नीड चेंज होगा और अकॉर्डिंगली अगर हम उसको वो चीजें प्रोवाइड करेंगे तो ही विल और शी विल रिमेन मोटिवेटेड, ठीक है ना। सो यू कैन रीड इट ऑन योर ओन। हाइजीन एंड मोटिवेशन थियरी है एंड मास्लोज नीड हायरार्की थियरी। So we will now come back to our topic, right? And we'll quickly cover 2-3 more acts, okay, which are required. You should know implementation and all these things when you'll be on the job, you'll be doing, but quickly you should have some information about it, right? So we covered Factories Act. We covered which one? The Payment of Bonus Act. Payment of Bonus Act. Any other act we covered? No. Okay. So let us read this Payment of Gratuity Act 1972. Payment of Gratuity Act 1972. So here the term is gratuity. Enacted on 21st August 1972. It is a Social Security Act and it has put together 15 sections. Factories Act, ID Act, ये बड़े-बड़े act हैं जिसमें ज़्यादा sections हैं. But these payment of bonus, payment of gratuity, these are small acts, specially for certain areas. Okay. Now, Bonus Act was to regularize the profit share. Payment of gratuity. Now, what is the term? What do you understand by the term gratuity? सुना है कभी? घर में पापा मम्मी कोई बात करता हो? Lump sum payment after retirement. Okay. Lump sum payment after retirement. आपके घर में मेहमान आते हैं? आप किसी के मेहमान बन के जाते हो? नहीं, कोई बुलाते नहीं है। Yes. शैतानी कम किया कर तो बुलाएंगे लोग। जब घर पे मेहमान आते हैं, आप पैर वैर छूते हो, है ना? सब शिष्टाचार है कि सब बंद कर दिया? Yes, sir. है ना? ओके। तो जाते टाइम वो खुश होके 10 रुपए 50 रुपए देके जाते हैं। होता है नहीं होता? क्या बड़े हो गए देना बंद कर दिया हम लोगों तो देना बंद कर दिया है। बंद कर दिया? नहीं सर, होता है अभी। अमाउंट बढ़ गया है। पहले 10-20 मिलता था, अभी 100 मिलता है। अमाउंट बढ़ गया। अच्छा, तो ऐसे मेहमान, ऐसे बुजुर्ग घर में पसंद आते होंगे ना, जो ये सब पैसा देके जाते होंगे। Yes. है ना? ऐसे लोगों का जाना भी मन करता होगा। ऐसे लोग घर पे आते होंगे तो अच्छा लगता होगा, चलो ये आए हैं चाचा जी, तो 10-20 रुपए देके जाएंगे। अगले हफ्ते का कॉलेज का ब्रेकफास्ट का या कैंटीन का खर्चा निकल गया, राइट? अच्छा, जो नहीं देता है वो कोई ऐसे चाचा ताऊ मामा फूफा आए लेकिन ऐसा नहीं दिया तो वी डोंट लाइक, है ना? बड़े मामा ऐसे देखे गए, आप तो नहीं देते हो, या मम्मी को शिकायत लगा देंगे।
same thing was happening with, it's a kind of reward, right? It's a kind of reward. So either खुश होके, आपकी सेवा से प्रसन्न होके, जैसे दुर्वासा प्रसन्न हुए थे कुंती की सेवा से, तो आशीर्वाद देके गए, है ना? तो इस तरह से you receive some gifts. So similar thing was in industries. That अभी कैसा हो गया? अभी gratuity has become an irrelevant thing in today's context, but for ages, कोई भी आदमी जब किसी कंपनी में जॉब ज्वाइन करता था ना, तो प्रेफरेबली वो वहीं रिटायर होता था, है ना? 20 साल, 25 साल, 30 साल, they will work in the same industry. तो इन सर्टन इंडस्ट्रीज मालिक खुश होके रिटायरमेंट के टाइम पे कुछ देगा, दे विल गिव सम गिफ्ट इन कैश एंड काइंड, ओके, बट नॉट ऑल द एम्प्लॉयर्स, नॉट ऑल द इंडस्ट्रीज, लाइक बोनस, करेक्ट? तो उसमें देयर इज अ ग्रीवियंस, जिस कंपनी मिलता है उसमें लोग खुश रहेंगे, जिसमें नहीं मिलता है वो कंप्लेन करेंगे, यार वो अच्छा कंपनी है, वहां तो पैसा मिलता है रिटायरमेंट पे, यहाँ नहीं मिलता है, यहाँ कम मिलता है, ज्यादा मिलता है. So there are all such areas of consideration behind this act. Okay. So to regularize all these things, an act was enacted. To regularize the payment of gratuity. Gratuity का मतलब है बख्शीश, है ना? A gift which an employer gives to its employee on certain conditions. काम से खुश होके दिया, या उसकी longevity के हिसाब से दिया, nature of work के हिसाब से दिया, या उसको अच्छा लगा कि आदमी अच्छा काम करके गया तो दिया. So there were different reasons behind this bakshish, this gratuity. Then in 1970, Kerala Industrial Employees Payment of Gratuity Act was enacted, and then finally central government also made an act called Payment of Gratuity Act 1972. So Kerala, West Bengal, these are the two states that started a prototype on payment of gratuity, and then in 72 central government also brought in this act. Applicable kahan hai? It is applicable to all the factories, mines, oil field, plantation, port and railway companies. कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा? प्लांटेशन एंड पोर्ट्स जो जम्मू कश्मीर में है, वहां ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है. So state government, central government, and as a part of legislation, it is also applicable in all factories, right? Definition of factory we have already read in Factories Act. Okay, Factories Act was not applicable in mines. They had a different act. However, this act is applicable to mines, oil field, everything, right? Shops and establishment as specified by the state government. Any other class of shops employing more than 10 persons specified by central government. All education institutions जहाँ 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं. All registered trusts and societies employing 10 or more people. Motor transportation undertakings, club, lawyer's office, where there are 10 or more people working, chamber of commerce and industry. So, in a nutshell, almost everywhere, this act is applicable. ठीक है? इस एक्ट में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमको पता होनी चाहिए. अरे अपूर्वा, अभी से जमा ही ले लो, अभी तो हमने चालू भी नहीं किया. Important section, section 4. It's about eligibility. Who can be eligible for availing or getting gratuity? ठीक है? तो कानून में ये लिख दिया कि कोई भी एम्प्लॉय अगर आपके यहाँ कंटिन्यूअसली लगातार 5 साल तक काम करता है, तो ही और शी इज एलिजिबल फॉर
gratuity. ठीक है? So gratuity is payable to an employee who at the termination of employment has served 5 years of continuous service. And what is continuous service? That has been defined in section 2A. कंटिन्यूस सर्विस किसको बोलते हैं? वो सेक्शन 2A में डिफाइन किया है कि किसी भी कैलेंडर मंथ में, कैलेंडर मंथ इज अगेन डिफाइंड जनवरी टू दिसंबर, है ना? लास्ट सेशन वी डिस्कस्ड कैलेंडर मंथ और फाइनेंशियल ईयर, राइट? कैलेंडर ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर. तो इन कैलेंडर मंथ अगर उसने 240 दिन काम किया है, राइट, सो इट इज ए कंटिन्यूअस सर्विस. आदमी एब्सेंट है because of sickness, accident, leave, layoff, strike, lockout, stoppage of work for which the employee is not at fault, है ना? किसी कारणवश कंपनी ने आपको छुट्टी दे दिया, आपकी गलती नहीं थी, मटेरियल नहीं है, सामान नहीं है, काम नहीं है, पावर सप्लाई बंद है, माल बिक नहीं रहा है, for any XYZ reasons, if the management has decided that you should not come to the workplace or to the factory, in that case also it is called as continuous service. 12 महीने में 240 दिन काम किया है या 190 दिन, अगर वहां 6 दिन से कम हफ्ता है, मतलब 5 days वीक जहां पे है वहां 190 दिन, और जहां 6 days ए वीक है वहां पर 240 दिन. एंड सीजनल एस्टेब्लिशमेंट, सीजनल मतलब जैसा हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, जहां पे पूरे साल काम नहीं है, शुगर फैक्ट्री, इट इज सीजनल बिजनेस, है ना? गन्ने का कटाई जब से होगा तब से लेके नया गन्ना आएगा तब तक सीजन चलेगा, उसके बीच में बंद हो जाएगा, राइट? तो इट इज सीजनल बिजनेस. तो अगर वो सीजनल नेचर का काम है, उस केस में जितना सीजन का ड्यूरेशन है उसका 75% अगर अटेंडेंस है तो इट इज टर्म्ड एज कंटिन्यूअस सर्विस, राइट? तो अगर 5 साल का कंटिन्यूस सर्विस है एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन, देन द एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर ग्रेजुइटी. ओके, नाउ द टर्मिनेशन कैन बी, आदमी का जॉब कब कब खत्म हो सकता है, व्हेन इट कैन बी टर्मिनेटेड. maybe when a person dies or he do something unethical in a company. So am I audible? Yes, if you can repeat what you said. I said that in case in unforeseen circumstances when a person dies, Okay. or maybe when he do something unethical. Okay. Or else, if company is doing cost cutting, then they do layoffs. Or in case somebody is not performing well, then also we can terminate the employee. Okay. So now here there is voluntary termination and involuntary termination. ठीक है ना? So termination of job, termination of employment can be either by retirement or by resignation or by death, है ना? or superannuation. So there are two terms, one is called retirement, second is called superannuation. Now what is the difference between retirement and superannuation? It is a question, you find out the answer of it. Superannuation and retirement. So what is the difference between superannuation and retirement? It's a question for you. Find out the answer and put it on the group. Next class आते तो मैं भी भूल जाऊंगा कि क्या सवाल पूछा था. So be honest and please put. अपूर्वा कुछ बोल रही है, सुनाई नहीं दे रहा है. अरे वाह.
So it can be superannuation, retirement, resignation, and even removal. Okay, so Prerna, what you said is to an extent it is correct. Now this removal can be voluntary or involuntary. Voluntary मतलब मैं खुद अपनी इच्छा से निकलूं, या involuntary कंपनी हमको निकाल दे. ठीक है. Now if someone is removed on the ground of misconduct, चोरी वोरी किया, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड किया, कोई क्रिमिनल केस किया, कोई उसका बिहेवियर ऐसा है जो मोरल बिहेवियर के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऐसे केसेस में ग्रेजुटी कैन बी विदहेल्ड. मतलब मैनेजमेंट अगर चाहे तो ग्रेजुटी का पेमेंट नहीं करेगी. ठीक है. तो फर्स्ट कंडीशन इज कि आपका 5 साल का कंटिन्यूस सर्विस होना चाहिए. कंटिन्यूस सर्विस का मतलब है 240 दिन या 190 दिन, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ days of work for that establishment. If it is seasonal, 75% present of the seasonal working days, and an absence because of any reason which was not of your fault. So sickness, long illness, maternity leave, layoff, retrenchment, stoppage of work, etc., they are all part of continuous service. Someone on the maternity leave didn't come for 9 months or 6 months, तो उस केस में उसका 240 दिन का वर्किंग नहीं होगा, but still it would be considered as continuous service. Okay, there is always a debate कि 5 साल पूरा या 4 साल 8 महीने 10 महीना काम किया तो पैसा मिलना चाहिए. तो act is very clear, it is 5 years of continuous service. Okay, less than 5 years, 4 साल 10 महीना 12 महीना 11 महीना, again it depends on an organization's prerogative whether to give or not to give. Okay, समझ रहे हो पक्का? Right. Okay, it can be withheld if the separation is by way of removal because of any misconduct or immoral behavior. Management can withhold the gratuity amount. Right? Definition, important is family. Okay, in this entire act, the most important definition is about family, who all are part of family. Okay, the reason of explaining or defining family explicitly in this particular act is many times it happens that at a senior age, person dies. Okay, na? So if the separation is by means of death of the employee, who will be entitled for receiving the gratuity amount? है ना? Generally, at the time of joining, every employee puts the nominations that who would be eligible to receive the pension or gratuity in his absence if there is an eventuality. Okay, so here it has been defined very clearly and explicitly who all can be the family. और जिस ऑर्डर में एक्ट में डिफाइन किया है उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूशन है. समझे? मतलब अगर उसमें लिखा है फर्स्ट नंबर पे स्पाउस, तो स्पाउस हैज ए प्रेफरेंस. राइट? बच्चे छोटे तो बच्चों को मिलना चाहिए, पिताजी बूढ़े तो पिताजी को मिलना चाहिए. नो. सो इफ I die, the first number in the family will come the spouse. Okay. If spouse is not there, who next? If he or she is not there, who's next? Okay, so accordingly it has been defined and it is the same order that has been followed. Correct? So if it is a male employee, then himself, his wife, his children, whether married or unmarried, his dependent parents, and the dependent parents of his wife, and the widow, and children of his predeceased son, if any.
So it is explicitly defined that who all can be considered as family. तो अगर एम्प्लॉय मेल है तो वो खुद ग्रेजुटी के लिए एलिजिबल है, उसकी वाइफ एलिजिबल है, उसके बच्चे एलिजिबल हैं अगर वाइफ नहीं है तो, ठीक है ना, वो खुद नहीं तो उसकी वाइफ, दोनों नहीं है तो बच्चे, चाहे वो शादीशुदा हो या कुंवारे हो. अगर ये भी नहीं है, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ देयर आर नो चिल्ड्रन, देन पेरेंट्स. अगर वो भी नहीं है, डिपेंडेंट्स पेरेंट्स मतलब उस कर्मचारी के ऊपर आश्रित माता पिता. अगर माताजी या पिताजी जॉब करते हैं, then they are not dependent parents, है ना. If the parent or the parents has their own livelihood, they are not dependent parents. In that case, dependent parents of his wife, अगर वो भी नहीं है, the widow and children of his predeceased son, मतलब दादाजी हैं, पिताजी गुजर गए, तो पत्नी है और बच्चा है, तो बच्चे को कब मिलेगा? जब ये सब ऊपर वाले नहीं होंगे तो उस बच्चे को एज ए फैमिली कंसिडर करेंगे. सिमिलर थिंग इफ इट इज ए फीमेल एम्प्लॉय, herself, her husband, her children, whether married or unmarried, her dependent parents of her husband and the widow, and the children of her predeceased son. ठीक है. So this is how the family is defined. Then any child lawfully adopted by him shall be deemed to be included in his family, but child of an employee has been adopted by another person, such child shall be deemed to be excluded from the family. मतलब मैंने किसी बच्चे को अगर गोद लिया है, तो he or she will be the part of the family. लेकिन मेरा बच्चा मैंने किसी को गोद में दे दिया, okay, and if I die, in that case that child is not part of the family. So you read this definition thoroughly in the act itself, so where you'll have clarity. In case of any doubt, we will discuss in subsequent class, right? So family is important aspect in this particular case. Other definitions: completed year of services, continuous service, factory, employee, employer, retirement, and superannuation. These are other definitions that one should remember as far as payment of gratuity is concerned. Wages, again, it has been defined in Payment of Gratuity Act that all emoluments which are earned by an employee while on duty or on leave, which are paid or payable to him in cash and includes dearness allowance, but does not include any bonus, commission, house rent, overtime wages, and any other allowances. है ना. तो वेज मतलब ऐसी कोई भी चीज जो उसको मिलनी चाहिए या मिली है, including the dearness allowance. Dearness allowance is one component which is, by and large is with government service. So they have a basic component, they have a dearness component. आप compensation benefit में या तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ेंगे, है ना, बेसिक एंड डीए, राइट. उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज जो इंसेंटिव है, बोनस है, कभी कभी मिलने वाली चीजें हैं, ओवर टाइम है, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज वेज. It is important to understand this definition because your gratuity is calculated on the wages. Okay, तो wage में क्या गिनना है, क्या नहीं गिनना है, that is also explicitly defined in this particular act. Other section, section 3 is about controlling authority. Section 4 is about payment of gratuity. 4A is an amendment, compulsory insurance. Section 5 talks about power to exempt. किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कौन सा एस्टेब्लिशमेंट एग्जम्पशन में जा सकता है, ऑल दैट पावर
किसको है ये पावर एग्जाम करने का, इट इज इन सेक्शन 5. Section 6 talks about nomination, means if an employee want to nominate, who all can be the nominees. Section 7 talks about determination of amount of gratuity, that is how to calculate the gratuity. 7A and 7B again amendments. Inspector, who will check this, power of inspector, what are the powers accorded to these inspectors. Section 8 talks about recovery of gratuity. Okay, मतलब किसी को ग्रेजुटी पेमेंट किया है तो हम काट सकते हैं क्या, रोक सकते हैं क्या, किसको रिकवर करना है या कब नहीं करना है या कब करना है, इट इज इन सेक्शन 8. सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट पेनल्टीज. अगर आपने टाइम पे ग्रेजुटी पेमेंट नहीं किया, ठीक से नहीं किया, पूरा नहीं किया, सो व्हाट आर द implications and penalties that can be implemented. ये पेनल्टी लगेगा तो कौन जिम्मेदार होगा, किसको पकड़ेंगे? Who would be held responsible or accountable for penalties? किसके नाम पे चिट्ठी फटेगा? CEO. Occupier. Occupier. A CEO can be an occupier, but penalty will be imposed on the occupier. Occupier मतलब मालिक या मालिक जैसा, है ना, जिसकी देख रेख में उस पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट का सारा कामकाज चल रहा है, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल. द डायरेक्टर और चेयरमैन कैन बी द ऑक्यूपायर, है ना. विच एक्ट टॉक्स अबाउट दिस ऑक्यूपायर? किस एक्ट में पढ़ा हमने? Ina Cholbe. Tripti, you are saying something. Sir, I was saying Factories Act. Factory 1947. Factories Act. In that act, it has been defined who can be an occupier, who can be the factory manager. है ना? The two roles which are explicitly defined in Factories Act. An exemption of employer from liability in certain cases. ऐसे कौन-कौन से cases हैं जहाँ पे employer को इस लाइबिलिटी से एग्जम्पशन मिल सकता है, मतलब एम्प्लॉयर कैन बी फ्री फ्रॉम पेइंग द ग्रेजुटी. सेक्शन 10. सेक्शन 11 टॉक्स अबाउट कॉग्निजेंस ऑफ इवेंट्स. कौन कौन सी चीजें हैं जो ऑफेंस हैं, गलत हैं, और उसका कॉग्निजेंस कौन ले सकता है, कैसे ले सकते हैं. सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ. सेक्शन 13 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेजुटी, दैट दिस अमाउंट मस्ट बी प्रोटेक्टेड. कंपनी को फायदा हो, नुकसान हो, चालू हो, बंद हो, बट ग्रेजुटी का पेमेंट होना चाहिए. उस अमाउंट को आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, दैट इज सेक्शन 13. सेक्शन 14 एक्ट टू ओवरराइड अदर इनेक्टमेंट्स. बाकी जो एक्ट में लिखा है उसको ओवरराइड करेगा ये एक्ट, ऐसा सेक्शन 14 में लिखा है. ओवरराइड मतलब किसी एक्ट में कोई जगह टर्म यूज किया है ग्रेजुटी से रिलेटेड, तो उस एक्ट अगर ग्रेजुटी का मैटर है तो देन दैट केस the payment of gratuity act 1972 will be the act instead of any other enactments. And section 15 talks about power of making rules, means a factory inspector or local appropriate government can make rule under this act for respective states if they wish to, right? So these are other sections, total 15 sections. Again, nominations, who all can be nominated or what to nominate, when to nominate, how to nominate. So every employee who has completed 1 year of service shall make such within such time. Such मतलब वो रूल में दिया होगा कितने टाइम के अंदर उसको एप्लीकेशन करना है. Such form मतलब वो भी रूल में लिखा होगा कि क्या प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है. Such manner मतलब वो भी रूल में लिखा होगा कि किस तरह से करना है. As may be prescribed nomination for the purpose of the second proviso of the subsection 1 of section 4. तो जिस आदमी ने 1 साल का नौकरी पूरा कर लिया है उसको रूल में दिया है उसके हिसाब से उस फॉर्मेट में उतने समय में नॉमिनेशन फाइल करना पड़ेगा, है ना. मतलब इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी
who will receive the amount of gratuity on my behalf. An employee may, in his nomination, distribute the amount of gratuity to more than one person. मतलब आप चाहे या कर्मचारी चाहे तो ऐसा कर सकता है कि जो पेमेंट ऑफ ये जो ग्रेजुटी का अमाउंट होगा उसमें से 50% वाइफ को और बाकी का 50% मेरे एक बच्चे को देना, या अगर वाइफ और 2 बच्चे हैं तो वाइफ को 50% और दोनों बच्चों को 25-25%, या 100% to the daughter, right? So an employee has an option to define, and they can always annually change and check this nomination and this distribution if they wish to. समझे? If an employee has a family at the time of making a nomination, the nomination shall be made in favor of one or more members of his family. मतलब जब आदमी नॉमिनेट कर रहा है किसी को, उस टाइम पे अगर उसका फैमिली है तो उस फैमिली में से वो 1, 2, 3, 4, 5 जितने लोगों को चाहे नॉमिनेट कर सकता है. डेफिनेशन ऑफ फैमिली इज डिफाइंड इन सेक्शन 2. तो बीबी, बच्चे, माताजी, पिताजी, पत्नी के माताजी, पिताजी, भाई, बहन, siblings are not covered in the prima facie, but then there are provisions. Okay, भाई को कब मिल सकता है, बहन को कब मिल सकता है, okay, कितनी एज तक का बच्चा होगा तो मिल सकता है. All these things have been defined so that you read. And any nomination made by such employee in favor of a person who is not a member of his family shall be void. मतलब जब मैं एम्प्लॉय बना तो मेरी पत्नी नहीं है, माताजी पिताजी गुजर गए हैं, बच्चा गोद लिया नहीं है, मेरा बच्चा किसी को गोद दिया नहीं है, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को आप नॉमिनेट नहीं कर सकते. अगर किया है तो जैसे ही आपका फैमिली बनेगा, मतलब द डे यू गेट मैरिड एंड इफ यू हैव ए वाइफ, दैट नॉमिनेशन विल बी इनवैलिड, शैल बी वॉइड. मतलब वो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो उस नॉमिनेशन में से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे और उसकी जगह पत्नी या पति ले लेगा. ओके, ओ नुकसान हो गया पूर्व नहीं. अंडरस्टूड? अगर नॉमिनेशन टाइम पे कोई फैमिली नहीं है ना, and if the employee subsequently acquires a family, such nomination shall forthwith become invalid. तो अगर है तो आप किसी तीसरे आदमी को बना नहीं सकते, आपने किसी को बना के रखा है. The moment you get people classified in the definition of family, ये इसको बनाए थे ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे, है ना, or they will not be able to claim even if it is not mentioned. Now how this gratuity is calculated? Calculation is very simple. This says 15 days wages for every completed year. आपने जितने साल नौकरी पूरा किया है, हर साल का 15 दिन का वेज. ठीक है. Now this wage is calculated as last drawn wage, which is basic plus DA, divided by 26. Any confusion, Vanshika? Yes, sir. Tell me. Can you repeat it? Which one? The first point, 15 days wages one. 15 days wages for every completed year. तो आप first criteria is that minimum 5 years of continuous service. ठीक है. तो अगर आपका 5 साल का जॉब हो गया और आपने जॉब छोड़ दिया तो 15 दिन फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर, मतलब 75 डेज का जो वेज होता होगा, दैट वुड बी योर ग्रेजुटी अमाउंट. Yes? No? Yes, sir. Okay. Fine. Now,
the wage per day is calculated by total earning divided by 26. जिसको सैलरी है उस केस में जो भी बेसिक अमाउंट है, इट इज फॉर मंथ. You understanding? Salary is for month. Month is considered for 30 days, but for payment of gratuity, the month is considered as of 26 days. So whatever is your basic plus DA, उसका total करेंगे, उसको 26 से divide करेंगे, so you will get the wage per day. That wage, that amount, multiply by 15, multiply by number of years. एक मोटा मोटा कैलकुलेशन करना है तो करो at your end, just to understand this better. So मान लो your monthly basic salary is 30,000 rupees. So when I say basic, it is nothing but basic and DA. तो महीने का आपका टोटल सैलरी में जो बेसिक का कंपोनेंट है उसका वैल्यू 30,000 रुपीज है. You have resigned from the job after 5 years and 7 months. You have resigned from your job after 5 years and 7 months. So what is the gratuity amount that you will be entitled for? फूफा जी को कितना पैसा देना चाहिए? So it will be like, sorry, So 1,03,846. कितना? 1,03,846. So what we said is 30,000. कितना गंदा हैंडराइटिंग है मेरा. Divide by 26. कितना हो गया वैल्यू? 1,153. 1,153. 0.84. 0.84. 8. So this is wage per day. Okay. Now this value 1153.8 multiply by 15. So what is the amount? 17,307. 17,000. 307. 07. ठीक है, 17,307 multiply by number of years of continuous service. तो कितना कब छोड़ा हमने? 5 years, 7 months. 5 years, 7 months. So this will be considered as 6 years. Okay, तो अगर 6 महीने के बाद का कोई वैल्यू है तो इट इज राउंडेड टू द नेक्स्ट ईयर. 5 साल 4 महीने होता तो 5 साल गिनते. 5 साल 6 महीने से ऊपर हो जाएगा तो 6 साल गिनेंगे. So this becomes your amount for gratuity. कितना आया? 1,03,000. 3,842. 3,842. This is the amount of gratuity payable to you, right?
क्लियर? तो जितना ज्यादा काम करेंगे और जो लास्ट ड्रॉन वेज होगा, लास्ट ड्रॉन बेसिक होगा, उसको डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विसेज. Okay, so this becomes your calculation of gratuity. It's very simple. Yes. Now maximum gratuity payable is rupees 20 lakhs. मतलब आपका जो भी टोटल अमाउंट बनता है, अगर वो 20 लाख या उससे कम है, then it is exempted in income tax calculation. मतलब 20 लाख तक का ग्रेजुटी अगर आपको मिला तो उसके ऊपर कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं है ना. तो अगर आपका टोटल ग्रेजुटी 50 लाख बनता है, मान लो आपका एक महीने का सैलरी 1 लाख रुपया है, your 1 month salary is 1 lakh rupees, divide by 26, how much it is? 26 lakh. No, I multiplied. 3,846. How much? 3,846. 3,846. Yes, sir. नहीं ना, ज्यादा होगा. 26 3 78 26 चौक 104. हाँ ठीक है. 846. 3,846. Yes, 0.15. ठीक है, 0.1 पे जाने दें. मल्टीप्लाई बाय 15. 15 से 90, 9, 15 चौका 60, 59, 5, 15 8 120, 125 का 5, 15 3 45 और 12 57 है ना. 57590 57692. 690. दस साल काम किया इंटू 10, 5,76,000 है ना. दिस इज द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी विच इज एग्जम्प्टेड नॉन टैक्सेबल. यही अगर पगार महीने का 10 लाख रुपया है, इसमें एक जीरो बढ़ जाएगा, इसमें एक जीरो और बढ़ जाएगा, दिस बिकम 57 lakhs. ठीक है, तो 1 इज 57 lakhs. 20 लाख रुपया है जो आपको मिलेगा, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, और बाकी का जो भी कुछ होगा उसके ऊपर इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा. ओके, दैट इज अबाउट टैक्सेबल. यू शुड रिमेंबर दैट कितना रुपए तक exempted है. इट इज अप टू 20 lakhs. ओके, दिस इज मेंशन्ड इन द एक्ट एंड रूल. So this is about calculation. Okay. Any doubt, any query? Vanshika, you understood? Mood नहीं है आज सुनने का. नहीं sir, I understood. Okay. Next, what it says? It says about rule of the Payment of Gratuity Act. है ना. तो सेंट्रल रूल 15 सेक्शन है, उसके 15 उसके रूल्स हैं. व्हाट इज द रूल? रूल फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी, फॉर्म डी, फॉर्म ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के. All these are the documents which are maintained under Payment of Gratuity Act. Nomination, there are different nominations. So form F, G and H are for nominations. F will say nomination, G will say fresh nomination, H will say modification of nomination. I is application of gratuity by an employee. J is application of gratuity by a nominee. है ना, employee मर गया तो nominee कैसे application करेगा? Everything has been defined in this central rule, the Payment of Gratuity Rule 1972. पूरी एनेक्चर, पूरी किताब उन्होंने ऑलरेडी दे दी है, खाली हमारा फर्ज बनता है इसको फॉलो करना. ओके, इंपॉर्टेंट केस, इंपॉर्टेंट जजमेंट. Indian Hume Pipe Company Limited versus their workmen on 8 February 1968.
पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, कहां से निकला, क्यों निकला, कैसे निकला, क्या लफड़ा था, so you can refer this particular case. Okay. So this was about payment of gratuity. Important thing is कब applicable है, किसको मिलेगा, किसको नहीं मिल सकता, और कैलकुलेशन कैसे होगा. These are the crux of this particular act. If you read the rule, in rule they have mentioned everything. तो एक्ट में जहां जहां भी सच वर्ड आया होगा, उस सच का मतलब क्या है वो उस पर्टिकुलर एक्ट के रूल में लिखा होगा. ठीक है ना. सो वेरी स्मॉल एक्ट, किसको मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्या है, कब नहीं मिलेगा, कैसे कैलकुलेट होगा, और इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ द एम्प्लॉय हिमसेल्फ, who all can be the beneficiaries of receiving the gratuity on behalf of employee. Right? अभी सब ऐसा सर हिला रहे हो, अभी कल सुबह पूछेंगे तो किसी को पता नहीं होगा क्या बताया था. But anyway, what is important is that you should know that there are certain acts which you will have to refer as and when you will be working. Next important act is about Contract Labor Regulation and Abolition Act. ये नीचे जो 12 मार्च लिखा है उसको इग्नोर करना, वो जब पिछली बार क्लास लिया था तब का डेट है ना. The enactment was 5th September 1970, 7 chapters and 35 sections. Now, what is the intent of this act? इस एक्ट का जरूरत क्यों पड़ा, या इसका एप्लीकेबिलिटी क्यों आया, कहां से आया. कई बार क्या होता है, इस्टेब्लिशमेंट्स या फैक्ट्रीज अपने काम को करने के लिए कुछ लोगों को फॉर द टाइम बीइंग हायर करते हैं, है ना. दे हायर फॉर स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, नॉट अ कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर. क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर. मतलब आई हायर्ड ईदर फॉर पेमेंट और नॉट, है ना. पैसा दे के काम ले रहे हैं या बिना पैसे के काम ले रहे हैं, मालिक को पता है या नहीं पता है, वॉट एवर मे बी द रीजन. ये भी हमने कहीं पढ़ा पहले, कहां पढ़ा, ये हमने कहां पढ़ा पहले, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट नहीं, फैक्ट्रीज एक्ट, उसमें पढ़ा होगा. और कहां पढ़ा, फैक्ट्रीज एक्ट. फैक्ट्रीज एक्ट. Sir, there is a term called gig economy. I have heard. So, is it related to this contract labors? गिग इकोनॉमी. What is gig economy? पढ़ा कभी? I mean, did you read somewhere gig economy? Yes, sir. I read that in this gig economy, it is a growing economy presently in India where workers are hired for a certain period of time for a particular work to be done. Once it is done, so they are done with their payments. They are made, payments are made, and I mean permanent basis पे नहीं रखते हैं उनको institution companies या फिर कहीं भी. कंसल्टेंट सुने, कंसल्टेंट वर्ड सुने, वकील, वकील मालूम, वकील Yes, sir. तहसील के बाहर बेचारे बैठ के टाइपराइटर पे टाइपिंग करते हैं, या लॉयर है, सॉलिसिटर है. कोई भी ऐसा आदमी जो किसी एक जगह पे काम नहीं कर रहा है, अलग अलग जगह पे अपने सर्विसेज दे रहा है, ईदर फॉर हायर और रिवॉर्ड, है ना, इज अ गिग वर्कर, है ना. आपके यहाँ जो
हाउस मेड या हाउस सर्वेंट आते हैं ना, तो पूरा दिन आपका काम नहीं करते, खाली आपके यहाँ ही काम नहीं करते, है ना। वो आपकी कॉलोनी में, मोहल्ले में, किसी दुकान में, रेस्टोरेंट में, ऐसा 8-10 जगह जाके दे डू देयर ड्यूटीज. Okay, so same thing is with us also. Like tomorrow you want to become a consultant, so you don't want to be an employee. Okay, or your employment term is such that I'll come 2 hours every day और आपका काम निपटा के जाऊंगा, and then there is a contract कि भाई 1 साल तक ऐसा करेंगे. कहीं ऐसा होगा जहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, आप ऐसे ही जाते हो. तो इस तरह का जो एम्प्लॉयमेंट टर्म है that is called gig, है ना. तो गिग इकोनॉमी मतलब क्या है आजकल? इफ यू सी, पीपल डोंट वांट टू बी एन एम्प्लॉय, रादर दे वांट टू वर्क एट मल्टीपल एवेन्यूज और 4-5 जगह काम करके एंड दे जनरेट देयर लाइवलीहुड्स. तो सुबह एक जगह जाएगा वहां पढ़ाएगा, दोपहर में एक जगह जाएगा वहां गाना सिखाएगा, शाम को एक जगह जाएगा वहां स्टैंड अप कॉमेडी करेगा, रात को एक जगह जाएगा वहां पे एक स्टार्टअप खोला होगा उसने फूड का और कुलचे छोले खिला रहा होगा. So at all these 4-5 places he is working to generate his livelihood. कहीं भी वो एम्प्लॉय नहीं है, या कहीं एक जगह ऐसी जहां पे वो एम्प्लॉय है, बाकी सब जगह वो अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है. वेदर इट इज एक्सप्लिसिट और इम्प्लाइड, मतलब कंडीशंस या तो लिख के दिया है या वर्बली बताया है कि 2 घंटा काम करेगा, हर घंटे का 1000 रुपये. सो दिस इज गिग वर्किंग. ये फॉरेन में था, अपने अभी धीमे धीमे आने लगा. कोविड के बाद में बहुत जगह ऐसा हो गया, लोग वर्क फ्रॉम होम करने लगे. तो अभी क्या हो गया, अभी वो स्कूल में टीचर नहीं रहे, तो सुबह एक स्कूल के बच्चों को पढ़ाया, दोपहर दूसरे स्कूल के बच्चों को पढ़ाया, शाम को घर में ट्यूशन लिया. सो दिस बिकम्स अ गिग इकोनॉमी. अब तक किसी भी एक्ट में इस कैटेगरी को डिफाइन नहीं किया है ना. वेदर इट इज फैक्ट्रीज एक्ट, वेदर इट इज आईडी एक्ट, बोनस एक्ट, कोई भी हो, सब जगह डेफिनेशन है वर्कमैन का. कहीं भी एक गिग को डिफाइन नहीं किया है. अभी जो नए कोड आ रहे हैं, जो नए वेज कोड आएंगे या लेबर कोड जो आने वाले हैं 4, हमने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था, उसमें इसको डिफाइन किया. सो इन दोस कोड्स दिस पर्टिकुलर कैटेगरी इज आल्सो डिफाइंड कि ऐसे लोगों को भी ये सारे कायदे कानून लागू होंगे. नहीं तो जो गिग वाला होगा उसको ना ग्रेजुटी मिलेगा, ना बोनस मिलेगा, ना पीएफ कटेगा, कुछ नहीं. आओ, सेवा दो, पैसा लो और जाओ. सो सिक्योरिटी भी नहीं, इनसिक्योरिटी भी नहीं, कोई सोशल बेनिफिट भी नहीं, कुछ नहीं, है ना. तो समटाइम्स इट इज एन एक्सप्लॉयटेशन, समटाइम्स इट इज एन इंडिविजुअल चॉइस. कभी कभी कंपनी ऐसे हायर कर लेगी लोगों को एज ए गिग, भाई 2 घंटा आने का काम करके जाने का पैसा कैश, 2000 रुपये रोकड़ा लो, लिखो. सो दिस इज कॉल्ड गिग इकोनॉमी. बट गिग इकोनॉमी इज डिफरेंट देन कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स. कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर मतलब ऐसे लोग जो कंपनी में मेन प्रोडक्शन काम के अलावा दूसरी सब जगह पे काम करते हैं. They are employed in other activities other than core functioning of the establishment. तो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसमें प्रोडक्शन के अलावा बाकी जो सर्विसेज हैं, साफ सफाई, झाड़ू मारना, गार्डन का देखभाल करना, वॉशरूम क्लीनिंग करना, ओके, तो इसमें जो लोग एम्प्लॉयड है कैटेगोरिकली दे शुड बी द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द वर्क. पूरे 8 घंटे का काम नहीं है, या काम ऐसा है जो कभी कभी है, रोज नहीं आना है, एवरी अल्टरनेट डे आना है. तो व्हाई शुड हायर समवन? आई विल हैव ए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर विद द हेल्प ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टर. मतलब कोई एजेंसी होगा जिसके साथ वो लोग जुड़े होंगे और मैं उस एजेंसी को बोलूंगा कि भाई मेरे को ये सर्विसेज चाहिए, यू प्रोवाइड, एंड देन ही विल हैव हिज पीपल विल कम एंड वर्क. तो इनको हम लोग एम्प्लॉय की कैटेगरी में रखेंगे. अगेन, एम्प्लॉय या वर्कर is defined in Factory Act, ID Act and every act. So nothing is used interchangeably. Who is employee?
ग्रेजुएटी एक्ट में भी डिफाइन किया होगा, फैक्ट्री एक्ट में किया होगा, आईडी एक्ट में किया होगा, यहां भी किया होगा. Okay, but this act came in existence because of exploitation of such people who are not in the core of the manufacturing but are hired, utilized for some time, and then asked to go. And then there was no social coverage, social security koi coverage nahi. Yeah, the nature of work is such that I don't want people to come every day 8 hours. Housemaid or house servant for that example. है ना, किसी शॉपिंग मॉल में बहुत सारे ऑफिसेज हैं, तो कोई ऑफिस ऐसा होगा जिसमें पूरे दिन के लिए प्यून रखा होगा, बट कोई ऑफिस ऐसे होंगे जहां पे एक काम वाली या काम वाला आता होगा, साफ सफाई करता होगा और चला जाता है ना. Or there are people who have such pool of people who on your request provide those people to you. है ना. तो कल उठ के किसी कॉलेज ने मेरे को ये बोला कि मुझे एचआर पढ़ाने वाला एक बंदा चाहिए, ये उसका स्कोप है, ऐसा होना चाहिए और आप प्रोवाइड कर दो. तो व्हाट विल हैपन, आई विल प्रोवाइड दैट रिसोर्स टू दैट एस्टेब्लिशमेंट, दैट रिसोर्स बिलोंग्स टू मी, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू दैट एस्टेब्लिशमेंट. तो एक दिन होगा मैं गर्विता को भेज दूंगा, नेक्स्ट डे अपूर्वा जाके पढ़ा देगी, तीसरे दिन तृप्ति चली जाएगी, चौथे दिन वंशिका, पांचवें दिन प्रेरणा, छठे दिन सिमरन, सातवें दिन कोई और, आठवें दिन कोई और, है ना. तो आदमी फिक्स नहीं है, कौन जाएगा कुछ डिसाइडेड नहीं, बट एक आदमी वहां जाएगा. सो सच एम्प्लॉयमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट्स, है ना. Purpose was to have people on some activities which are not core, which may not be regular, है ना. So intermittent job है, कभी कभी जरूरत पड़ता है. जैसे मेरे पास वेयर हाउस में सामान पड़ा, उसको ट्रक में लोड करना है. अब रोज तो करना नहीं, जिस दिन डिस्पैच होगा उसी दिन करना पड़ेगा. तो मैं टेम्पररी उस दिन 4 आदमी बुला लूंगा, काम करा दूंगा, उसको उस दिन का पैसा देके घर भेज दूंगा. करेक्ट. तो employer will not do, employer ask some agency to do this work, है ना. आपके घर में अगर कभी रिपेयरिंग कराना हो, है ना, घर का अगर रिपेयरिंग है तो क्या करते हैं, चौराहे पे जाते हैं, वहां 8-10 लोग खड़े होंगे, उनका एक मुकादम होगा, उसको बोला कि भाई मेरे को 4 लेबर चाहिए. क्यों, तो बोले पूरा घर का आजू बाजू का गार्डन वार्डन साफ कर देंगे, गाँव में शादी है, घर में शादी है, मेहमान आने वाले हैं, तो कचरा पट्टी नहीं चाहिए, बाहर दीवार को कलर मार दो. तो जो भी 4 लोग मिले वो आएंगे, फटाफट घास वास काटा, शाम को 5 बजे हाथ पैर धो के निकल जाएंगे. अगले दिन दे आर नॉट योर एम्प्लॉय, आपने उसको शाम को दिहाड़ी दे दिया, खत्म, फुर्सत. नाउ इन दिस एंटायर प्रोसेस हु इज एट द लॉस, दोज वर्कर आर एट द लॉस बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एनी सोशल सिक्योरिटी. जितने दिन काम करेंगे पैसा मिलेगा, काम नहीं करेंगे उस दिन पैसा नहीं मिलेगा. बट दे शुड ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए. तो उसको रेगुलराइज करने के लिए दिस एक्ट केम इन पिक्चर इन 1970. द एक्ट सेज कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970, 7 chapters and 35 sections. So as I said, the object of this act is to do away with the abuse of the system of employment of contract labor. An act to regulate the employment of contract labor in certain establishment and to provide for its abolition in certain circumstances. कब रखना है, कब निकाल सकते हैं, रखा है तो क्या ध्यान रखना है, निकालोगे तो क्या चीजों का ध्यान रखना है, ये सब चीजें इस एक्ट में दी है. The concern for providing legislative protection of this category of workers whose condition have been found to be
assemble resulted in the enactment of Contract Labor Regulation and Abolition Act, है ना? कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हायर करना और निकाल देना. दिस एक्ट टॉक्स अबाउट बोथ द थिंग्स. इसका एक्ट भी है और रूल भी है. So rule came in 10 February 1971. So rule talks about how it can be executed. Okay. किसको applicable है? Whole of India. So when I say whole of India, it is including state of Jammu and Kashmir. Now this is applicable to both the parties. An establishment who is employing contract labor, where 20 or more workmen are employed or were employed on any day of the preceding 12 months. तो पिछले 12 महीने में किसी भी दिन अगर 20 या उससे ज्यादा लोगों ने काम किया है तो उसको ये एक्ट एप्लीकेबल है. ठीक है. एवरी कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर मतलब जो आदमी ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, चौराहे का मुकादम हो या मंडप वाला हो, कैटरिंग सर्विस वाला हो, ट्रैवल एजेंट हो, है ना, दे ऑल आर कॉन्ट्रैक्टर्स. शादी के लिए क्या करते हैं हम? एक एजेंसी सोर्स करते हैं, उसको बोल देते हैं भाई इतना सब काम करने का है ना. तो उसके बाद आदमी होगा जो मंडप बनाएगा, उसके पास एक आदमी होगा जो कैटरिंग देखेगा, उसके पास एक आदमी होगा जो ट्रैवल अरेंजमेंट देखेगा, उसके पास एक आदमी होगा जो होटल देखेगा, राइट. और फॉर लिमिटेड पीरियड, शादी खत्म, बाद में सब फुर्सत. दे आर नॉट योर परमानेंट एम्प्लॉयज. सो एवरी कॉन्ट्रैक्टर हु एम्प्लॉयज और हु एम्प्लॉयड ऑन एनी डे प्रेसिडिंग 12 months 20 और मोर वर्कमैन. तो ये बाइंडिंग किसको है? एम्प्लॉयर मतलब कॉन्ट्रैक्टर को भी है और उस एस्टेब्लिशमेंट को भी है जहां पे 20 से उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं. ठीक है. लाइसेंस दोनों को लेना है, कॉन्ट्रैक्टर को भी लेना पड़ेगा और कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा. If I want to avail, I will have to register my establishment in the Office of Labor that I want to hire contractor. ठीक है. जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा और लाइसेंस अवेल करना पड़ेगा कि मैं इस कंपनी में इतने लोग डिप्लॉय करूंगा. ओके. सो देयर इज वन एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड कॉन्ट्रैक्टर. एट द सेम टाइम कॉन्ट्रैक्टर इज लीगली बाउंड टू अवेल ए लाइसेंस फॉर सप्लाइंग लेबर अगर वो 20 या उससे ज्यादा आदमी कहीं भी प्रोवाइड कर रहा है ना. मतलब एक शादी वाला, फराज खाना वाला अगर 4 अलग अलग जगह पे उसने आदमी सप्लायर किए, हर जगह पे 4-5 आदमी है, at 4 different locations he has provided 5 people. So for that contractor it is necessary to take the license because he has 20 people with him. बराबर. लेकिन जिसके यहाँ सप्लाई किए उसके यहाँ खाली 5 ही लोग हैं, तो उसको अपने आप को रजिस्टर करने का जरूरत एज सच नहीं है. अंडरस्टूड? ओके. सो एप्लीकेबिलिटी इट अप्लाइज टू बोथ एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्ट्रैक्टर. ओके. किसको एप्लीकेबल नहीं है? उन लोगों को एप्लीकेबल नहीं है जहां पे इंटरमिटेंट या कैजुअल तरह का काम है जो 220 दिन से ज्यादा किया है, और अगर सीजनल है तो 60 डेज से ऊपर है. देन इट शेल नॉट बी डीम्ड टू बी एन इंटरमिटेंट नेचर. मतलब कोई ये समझे कि मेरे पास 20 आदमी हैं लेकिन मेरा काम इंटरमिटेंट है, सीजनल है, तो मुझे लेने का जरूरत नहीं है. तो इंटरमिटेंट कब माना जाएगा? अगर वो ड्यूरेशन 220 दिन से कम है इन रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट या 60 दिन से कम है अगर वो सीजनल है. ठीक है.
और अगर सीजनल नेचर का काम है तो। There is a judgment, Standard Vacuum Refinery Company versus their workmen, 1960. Observe that contract labor should not be employed where the work is perennial and must go on from day to day. मतलब जहाँ पे काम जो है पेरिनियल है, मतलब रेगुलर काम है, रोज होता है, सेम होता है और अलग अलग तरह के लोग उस काम को करते हैं, वहां कॉन्ट्रैक्ट लेबर आप डिप्लॉय नहीं कर सकते। मतलब किसी भी कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट के प्रोडक्शन लाइन में आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर डिप्लॉय नहीं कर सकते, क्योंकि वो काम ऐसा है जो टेम्पररी नहीं है ना, वो रोज होगा, एवरी डे। सो इट इज नॉट ऑफ पेरिनियल नेचर। पेरिनियल मतलब कभी कभी होता है, लोडिंग अनलोडिंग कभी कभी होता है, हाउस कीपिंग रोज नहीं करते, 8 घंटे का काम नहीं है, आएगा झाड़ू मारेगा चला जाएगा, गाड़ी आया लोड किया भेज दी। दीज आर ऑल पेरिनियल। द वर्क इज इंसिडेंटल टू एंड नेसेसरी फॉर द वर्क ऑफ द फैक्ट्री। ऐसा काम है जो उस कंपनी के लिए जरूरी है। उसमें अगर आपने कोई आदमी रखा है जिसको आप ये बोलते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, तो इस पर्टिकुलर जजमेंट में ऐसा बताया कि नहीं, वो आदमी भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर नहीं होगा, रेगुलर वर्कर में ही गिना जाएगा। द वर्क इज सफिशिएंट टू एम्प्लॉय कंसिडरेबल नंबर ऑफ होल टाइम वर्कमैन। काम ऐसा है, इतना है कि उसको करने के लिए आपको एक आदमी चाहिए ही चाहिए, तो वहां भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर नहीं गिनेंगे। द वर्क इज बीइंग डन इन मोस्ट कंसर्न थ्रू रेगुलर वर्कमैन। वही काम अगर रेगुलर वर्कर कर रहा है, उसी काम में अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर लगा के रखा है तो वो भी गलत है ना। डेफिनेशन, देयर आर 2 definitions. प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मतलब मालिक, जिसने किसी के माध्यम से लोगों को अपने यहाँ काम पे रखा है, इज प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। आपके घर में शादी है, आपने किसी मंडप वाले को कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो यू बिकम द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, है ना। अंडरस्टूड? यस, नो? सारे हैंग हो गए? ओके। सो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जिसने किसी आदमी को किसी दूसरे के माध्यम से काम पे रखा है, इज ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, एनी वर्कर विल बी ए कॉन्ट्रैक्ट लेबर व्हेन he is hired for work of establishment through a contractor। किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, with or without the knowledge of principal employer। आपको पता हो या नहीं पता हो कि ये बंदा मेरे यहाँ काम करता है, लेकिन कोई एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको आपने काम दिया है, और अगर वो बंदा उस कॉन्ट्रैक्टर के मास्टर में है, उसकी लिस्ट में है, then he is a contract worker for principal employer। Yes, no? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? The principal employer is not having the knowledge, then how a person can be employed for his work to be done? आप एक मकान बनवा रहे हो, आप एक मकान बनवा रहे हो, 2 मंजिला 3 मंजिला मकान बनाने के, आप खुद काम कर रहे हो, सीमेंट मिक्स किया, रेती मिक्स किया, कपची डाला, तगारे भर के ऊपर लेके गए, यू वर्किंग? नो। आपने क्या किया? आपने एक किसको हायर किया? आप लेबर ढूंढने जाते हो खुद?
सुबह गाड़ी लेके निकले, चौराहे से पकड़ लाए, यू डू इट। 25 लोग लगेगा, 50 लोग लगेगा, यू डू। Contract. यू डोंट डू इट, राइट। आप क्या करोगे, आप किसी बिल्डर को पकड़ोगे, है ना, जो ये काम करता है, तो आपके लिए वो हो गया कॉन्ट्रैक्टर, राइट। अब वो रामू को लेके आया, शामू को लेके आया, राम को लेके आया, श्याम को लेके आया, मीना को लेके आया, मोहन को लेके आया, उससे आपको कुछ लेना देना है? नहीं ना। आपको किससे मतलब है? जो कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रहा है, आपको क्या चाहिए? व्हाट इज योर एंड रिजल्ट? घर मकान बनना चाहिए, बराबर। आपने बोला 3 महीना 3 लाख रुपया, 3 मंजिला इमारत, दिस इज व्हाट आई विल गिव यू। डिप्लॉय 30 आदमी, 40 आदमी, 50 आदमी, 10 आदमी, तुम्हारा मर्जी, बराबर। तो अब एक दिन 10 आदमी ने काम किया, किसी दिन 25 आदमी ने काम किया, किसी दिन 15 आदमी ने काम किया। अब वो 25, 15, 50 कौन थे आपको पता है? पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है ना। ओके, उसमें से किसी को भी चोट फोट लग गया, ऊपर से गिर गया, हड्डी उड्डी टूट गया, मर गया, फैटल हो गया, केस किस पे होगा? बिल्डर। कॉन्ट्रैक्टर पे नहीं, तुम्हारे ऊपर। So if you give an argument कि साहब मैं तो उसको जानता नहीं, मेरे यहाँ काम करता है कि नहीं करता है, बट देन अगर वो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि नहीं साहब ये यही काम कर रहा था और गिर के यही निपटा है ना, तो देन whether you know or you don't know, liability comes on the principal employer. ठीक है ना? To protect this liability, what you say, you will tell the contractor that तेरे जितने भी बंदे काम कर रहे हैं ना, इन सबका बीमा करा के रखना। ये कोई गिरेगा, मरेगा, हड्डी उड्डी टूटेगा तो उसका मैं 1 भी रुपया एक्स्ट्रा दूंगा या दूंगी नहीं। ओके, तो वो क्या करेगा, वो टेम्पररी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन पॉलिसी लेगा। हम खरीदते ना LIC का जीवन बीमा, जीवन आनंद, मरने के साथ भी, मरने के बाद भी, सॉरी जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, ऐसा होता है ना। तो ऐसा अपन कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं कि भाई दिस इज इन योर परव्यू, यू विल हैव टू लुक आफ्टर। लेकिन अगर उसने नहीं लिया है तो एज ए प्रिंसिपल लॉयर, आपको पता हो या नहीं पता हो, ये लायबिलिटी ऑटोमेटिकली आपके ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, है ना। So the reason is just to protect those people. Just to protect those people. This is so unfair because the contractor is speculating those workers all the time. We just hire the contractor. We are not speculating the labor. So whatever happens to them, why should we be responsible for it? This is unfair to whom? To us. If anything happens to the labor. Okay. What is the object of this act? What is the intent of this act? Provide justice or fair. It is to be fair with such people with whom you are not fair. You getting? Yes, sir. You think that why this liability is to me? मैं तो उस आदमी को जानता भी नहीं, राम मोहन शामू कौन है, वो गिरा, हड्डी बड्डी टूटा, तो उसके लिए मैं क्यों जिम्मेदार, है ना। मैं तो उसको बोल दिया, बट देन वो आदमी उस कॉन्ट्रैक्टर के अंडर प्रोटेक्टेड है कि नहीं, वो देखने का जिम्मेदारी भी हमारा है, राइट। सो if you leave this construction ka example, that is just to understand the contractor and employer relationship. But in an establishment,
आपका एक केमिकल फैक्ट्री है, स्टील प्लांट है, आपने किसी को बोला कि भाई मेरे को 1000 लोग चाहिए. You don't know those 1000 people, but that 1000 people are working in your premise. कल उठ के प्लांट फटा, कोई रिएक्टर फटा, वो गरम गरम जो आयरन है किसी पैर पे गिर गया, छेद हो गया. You cannot do away by saying that I don't know whether this person was employed with me or not. Okay. So as a principal employer, it is your responsibility to ensure that all the compliances are met. मतलब मेरा और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में एग्रीमेंट है. वो आदमी जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास जो भी लोग काम कर रहे हैं वो सारे लोग उन सारे एक्ट्स के प्रोविजन में कवर्ड हैं जो एप्लीकेबल है. जैसे पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी, वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट. ये सारे एक्ट का बाइंडिंग उस कॉन्ट्रैक्टर को भी है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, उसका जिम्मेदारी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर. यू गेटिंग इट? आपको करना नहीं है, लेकिन आपको एज ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ये इंश्योर करना है कि कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है. क्योंकि अगर वो नहीं करेगा या उसने नहीं किया तो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा. बिकॉज वेदर यू नो और यू डोंट नो, बट दैट पर्सन इज इन योर प्रीमाइस, है ना. सो इट इज, you may feel unfair to the employer, okay, but this intention of this act is to be fair with all such unorganized people. उनका exploitation नहीं हो, उसके लिए ये act. So it is but obvious that when the act is protecting that, the heat will be on the other side. So contractor will face and subsequently you will bear, है ना. So in large industries, it is very important to hire a contractor who is very good with compliances, है ना. आपको 1000 आदमी चाहिए था, उसने 1000 आदमी दिया, आपने उस 1000 आदमी का पगार उसको दिया. बाद में उसने वो पगार 1000 आदमी का 1000 लोगों को दिया कि नहीं दिया, ये सुनिश्चित करना आपका काम. उन 1000 आदमी का प्रोविडेंट फंड उसने भरा कि नहीं भरा, ये सुनिश्चित करना आपका काम, है ना. अगर उसने नहीं भरा है तो आपको भरना पड़ेगा. बाद में भले उसके पास रिकवर करो, काट लो, आप कैसे वो हासिल करोगे, दैट इज योर मेथोडोलॉजी. बट फॉर दैट वर्कर, इफ कॉन्ट्रैक्टर, इफ ही इज नॉट देयर, देन यू. So basically here the principal employer is working as an occupier. Principal employer मतलब any establishment who has hired people for wage or reward, whether it is in your knowledge or not. Employer मतलब नौकरी पे रखने वाला, ठीक है. अब रखने वाला कोई एक आदमी होना चाहिए, तो वो एक आदमी इज ऑक्यूपायर, है ना. कॉलेज में कुछ लफड़ा होगा तो कॉलेज इन इंस्टीट्यूशन, कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते, कॉलेज इन एस्टेब्लिशमेंट, कॉलेज इन एम्प्लॉयर. लेकिन कॉलेज में कोई लफड़ा हुआ, किसी ने सिक्योरिटी वालों को मार दिया, ड्राइवर को पीट दिया, गाड़ी तोड़ दिया, ऐसा कुछ भी बवाल होगा तो किसको पकड़ेंगे? केस किधर बनेगा? मैनेजमेंट में कौन? प्रिंसिपल या ट्रस्टी? अगर प्राइवेट है तो ट्रस्टी या ट्रस्ट का चेयरमैन. he becomes the employer, he becomes the occupier, right? So employer मतलब जो आदमी काम पे रख रहा है is an employer,
और ऑक्यूपायर मतलब जिसको हम मालिक की जगह पे देख रहे हैं, इज एन ऑक्यूपायर. ओके, सो इज इट क्लियर? Any question, Vanshika? Yes, sir. So though it is unfair to us, it is for the fairness of such people, right? Now, who is a workman? Who is a contractor is defined in section 2C and 2I. Workman means any person employed in or in connection with the work of any establishment to do any skilled, unskilled, semi-skilled or unskilled manual, supervisory, technical or clerical work. उसको सिंगल टर्म में याद रखना है तो सस्ता काम. इसको क्या बोलते हैं? सस्ता काम. SUSTA. Skilled, unskilled, semi-skilled, technical, एडमिनिस्ट्रेटिव. सस्ता. तो अगर इसमें से कहीं भी आदमी काम कर रहा है तो वर्कमैन. दिस डेफिनेशन इज सेम व्हिच वाज डिफाइंड इन फैक्ट्रीज एक्ट. सो दिस इज अ वे टू रिमेंबर इट. ओके, whether terms of employment be expressed or implied, but does not include any such person. So चाहे लिख के आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है या बिना लिखे, वो आदमी अगर आपके यहाँ काम कर रहा है, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, सेमी स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, फंक्शनल हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, सुपरवाइजर हो, कोई भी हो, दे ऑल आर वर्कमैन. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन. लेकिन कौन इसमें नहीं आएगा? Who is employed mainly in managerial or administrative capacity will not be a workman. Employed in a supervisory capacity draws wages exceeding 500 rupees per mensum or exercises. Now these amounts have been revised, so you refer the amendments, you will find कि भाई अभी कितना हो गया, कितना 1000 रुपए तक चला गया. So now this limit has gone to 10,000 rupees. है ना? एक्ट में अभी भी 500 रुपए लिखा है, बट देन 10,000 रुपए से ऊपर का अगर उसका वेज है, उसका जॉब नेचर सुपरवाइजरी है, मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव काम में अगर एम्प्लॉय किया गया है, तो ये सारे लोग जो है वो वर्कमैन में नहीं आएंगे. ओके, फ्लाइट में जो अटेंडेंट्स हैं, क्या बोलते हैं उनको? एयर होस्टेसेस, है ना? सो वेदर एयर होस्टेसेस आर वर्कमैन? Pilot is a workman? No. Air hostess? सबका 1-1 लाख रुपया सैलरी है. वर्कमैन? Yes or no? Yes. Yes. Yeah, Purva. By the nature of the job, they all are workmen. क्या अच्छा नहीं लगा ऐसा उनको वर्कमैन बोला? इतना पैसा खर्चा किया, इतना पढ़ाई लिखाई किया, इतना हवाई जहाज में उड़ने को मिलता है, बट आप उनको वर्कमैन बोल रहे हो. So the nature of the job is workman. उनकी क्रू का जो हेड है ना, एयर होस्टेस में जो उनका जो क्रू है, उस क्रू में एक हेड होगी, है ना? मेन फ्लाइट अटेंडेंट. शी इज नॉट अ वर्कमैन बिकॉज हर रोल इज सुपरवाइजर, है ना?
So it is the nature of the job that defines by and large that whether he is or she is workman or not. आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, मुझे पता नहीं है, but in IT sector ये जो प्रोग्रामर्स हैं अमेरिका में काम करते हैं, ऑफशोर प्रोजेक्ट्स, onshore projects, they also claim that we are also workmen. We have been exploited, and they also went to the court under Industrial Dispute Act. वो सब 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख का CTC है. But the nature of job is what? They're not supervisors, ना, उनको बैठ के प्रोग्रामिंग ही करना है दिन भर. So then they also become workmen as per definition. Okay, so it is subjective. You have to read the act, the rule, in case any such grievance. But by and large, मोटा मोटा हमको थोड़ा सा idea होना चाहिए कि who is a workman and who is not a workman. Chapter 3, section 6 to 10 talks about registration of establishment. यहाँ इतना हमको खाली पता होना चाहिए, जैसा अभी बात किया, कि every establishment where 20 or more such people are working, they will have to register themselves as an employer. Any person who is providing 20 or more people to any establishment put together is a contractor and will have to have the license for supplying labor. Okay, and section 7 talks about how to do this registration process. कौन सा फॉर्म है, क्या डेटा चाहिए, कैसे चाहिए, वो सब section 7 talks about it. Licensing the contractors, chapter 4, who can have a license, how to avail the license, what is the validity, how to renew, all these things are in chapter 4. क्या क्या इंफॉर्मेशन होगा, कितने घंटे काम होगा, वेज कैसा होगा और बाकी एमिनिटीज मिलेगा नहीं मिलेगा, कैंटीन में खाना नहीं खा सकता, कपड़े नहीं धो सकता, हाथ नहीं धोने का, यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा, बाकी सबको मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा. तो ये सब चीजें जो है वर्किंग कंडीशन एंड एवरीथिंग हैज टू बी डिफाइंड. टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस क्या क्या हो सकता है. इट इज नॉन ट्रांसफरेबल. कॉन्ट्रैक्ट लेबर शुड नॉट एक्सीड ऑन एनी डे मैक्सिमम नंबर स्पेसिफाइड इन द लाइसेंस. Wages, hours of work and other condition of services. Notify any change in number of workmen or condition of service. All these things will be the part of the license. मैंने लिया, मैंने अपना लाइसेंस किसी और को ट्रांसफर कर दिया, नॉट अलाउड. मैंने 100 लोगों का लाइसेंस लिया, 150 लोग सप्लाई कर रहा हूँ, नॉट अलाउड. मैंने लाइसेंस लिया, 8 घंटे का काम कर रहा हूँ 10 घंटे, नॉट अलाउड. 100 का 150 नंबर हो गया, मैंने एप्लीकेशन नहीं किया, रिन्यू नहीं कराया, नॉट अलाउड. ओके, सो दिस ऑल थिंग्स विल बी इन लाइसेंस, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस. वेलफेयर एंड हेल्थ, अगेन वी read in Factories Act as well. Chapter 5, 16 to 21 talks about welfare and health of the contract workers. क्या क्या फैसिलिटी मिलना चाहिए, कैंटीन, रेस्ट रूम, ड्रिंकिंग वाटर, लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स, वॉशिंग फैसिलिटी एंड फर्स्ट एड फैसिलिटी. जो कुछ आप परमानेंट वर्कर को देंगे वो सब आप इसको भी देंगे. 100 या उससे ज्यादा वर्कर काम कर रहा होगा तो कैंटीन होना चाहिए, रेस्ट रूम होना चाहिए, सफिशिएंट ड्रिंकिंग वाटर का प्रोबेबिलिटी होना चाहिए, वॉशिंग फैसिलिटी होना चाहिए जहां 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं वहां. सेक्शन 20 टॉक्स अबाउट लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इन सर्टेन केसेस, है ना. जैसे अभी हमने बात किया, बाथरूम होना चाहिए. अभी बाथरूम कॉन्ट्रैक्टर तो बनवाएगा नहीं, है ना. आपकी फैक्ट्री में बाथरूम होना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्टर क्यों बना के देगा भाई, उसके तो आज काम कर रहे हैं, कल काम नहीं करेंगे. So in that case, principal employer has this obligation to provide basic amenities so that these contract workers can work, right? So any amenity required not provided by the contractor shall be provided by the principal employer. All expense incurred by principal employer in providing the amenity may be recovered by the principal employer from the contractor. तो उनको कैंटीन देना है, खाना देना है, वो सब फैसिलिटी अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं देगा तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा.
प्रिंसिपल एम्प्लॉयर चाहे तो कॉन्ट्रैक्टर के पास से रिकवर कर सकता है ना, पैसा है तो जरूरत नहीं तो ठीक है। व्हाट आर द वेलफेयर प्रोविजंस? कैंटीन, रेस्टरूम, crèche, drinking water, latrines and urinals, washing facility and first aid cases. कब applicable है? It is also mentioned, right? Section 21, responsibility of payment of wages. कौन responsible है? Contractor. वो नहीं देगा तो कौन देगा? Principal employer. कब देना है? 10 तारीख के पहले दे देना है। 1 महीने से ज्यादा का पैसा बाकी नहीं रख सकते। पैसा कॉन्ट्रैक्टर ने दिया कि नहीं दिया वो स्क्रूटनी करना प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का काम है। कॉन्ट्रैक्टर जब पैसा देगा उस वक्त प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का कोई भी आदमी वहां हाजिर होना चाहिए। अभी कैश पेमेंट बंद हो गए, अभी डीबीटी हो गए, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, है ना। तो इन दैट केस बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, प्रोविडेंट फंड का स्टेटमेंट, ये सारी चीजें प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को कॉन्ट्रैक्टर के पास से मांगना पड़ेगा। अगर इफ ही फेल्ड टू कॉम्प्लाई, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर विल बी लायबल टू कॉम्प्लाई। ठीक है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का क्या काम है? दीज आर द ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। जब पैसा बढ़ रहा होगा उस टाइम पे कोई एक आदमी हाजिर रहना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ वेजेस within the prescribed time, principal employer will be liable. Recovery is subjective. क्या क्या रजिस्टर मेंटेन करना है? फॉर्म 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 29। इतने सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको या कॉन्ट्रैक्टर को मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर वो नहीं करेगा तो उसके बिहाफ पे आपको करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा करना चाहिए नहीं। जो आपके स्कोप में है एज ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर उतना ही डॉक्यूमेंट मेंटेन करने का, बाकी का डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्टर को ही मेंटेन करना पड़ेगा। नहीं तो अगर वो सारा काम भी आप करेंगे तो कल उठ के इंस्पेक्टर बोल देगा कि भाई ये लोग जो कॉन्ट्रैक्टर वाले हैं एक फर्जी कॉन्ट्रैक्ट है, लोग आपके लिए ही काम करते हैं, आप ही काम देते हो, इसलिए इसको परमानेंटली अपने रोल पे ले लो। सो दीज आर द कॉशन विच वन मस्ट एक्सरसाइज। एनुअल रिटर्न, रिटर्न मतलब रिपोर्ट, फॉर्म 25 एंड 24। अभी 24 तो लगभग बंद हो गया, ओनली एनुअल रिटर्न इज देयर। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, वो डिसाइड कर सकता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कि कब एम्प्लॉय डिप्लॉय नहीं करना है। ठीक है ना। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एबोलिशन, आपने उनको बंद कर दिया, बरतरफ कर दिया तो क्या हो सकता है? Contractor gets annihilated and so does the contract. Contract labor does not automatically become direct employee of the principal employer. अगर आप एबोलिश नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं करेंगे, खारिज नहीं करेंगे, तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को हो सकते हैं। उनको कायम करना पड़ सकता है, उनको रिकवरी नहीं होगा, ऑल दिस थिंग्स, राइट। कहाँ कहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेबर आप एम्प्लॉय कर सकते हो? हाउसकीपिंग, हॉर्टिकल्चर, लोडिंग अनलोडिंग, मटेरियल मूवमेंट, कैंटीन एम्प्लॉयमेंट एंड सिक्योरिटी एंड विजिलेंस। तो ये कुछ एरिया है जहां पे आपको छूट है कॉन्ट्रैक्ट लेबर को डिप्लॉय करने की, राइट। Certain cases, Gujarat Sanitary Board versus Union of India 1995, Air India Statutory Corporation versus United Labour Union, Steel Authority of India versus National Union of Waterfront. These are some cases that you should refer when it comes to payment, contract labor regulation and abolition act. Question: in a situation where an organization ABC has outsourced any service transport of some senior staff of a company, EFG Gain has outsourced it to 35 different vehicle owners cum drivers. Now, who is the principal employer and what are the responsibility of the contractor? मैंने आपको बोला, आपने किसी तीसरे को बोल दिया, है ना। मैंने शादी के लिए एक होटल बुक किया, ठीक है। उस शादी के लिए जो कुछ काम करना है ना, उसके लिए होटल वाले ने तीसरे आदमी को बुक कर दिया। So now who is principal employer?
So these are certain questions you need to think about the answers of this. I'll share this presentation, spend some time, okay, and try to find out the answers of these questions. Advantage and disadvantage of appointing contract labor. मिनिमम वेज एप्लीकेबल है कि नहीं, पीएफ, ईएसआईसी, लीव, ग्रेजुटी, ये सब एप्लीकेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर पे है या नहीं. Okay, so these are two acts, payment of gratuity and contract labor regulation and abolition act. Okay, one more act. This is Industrial Employment Standing Order Act. जैसे फैक्ट्री एक्ट वर्किंग कंडीशन पे बात करता है, स्टैंडिंग ऑर्डर वर्किंग एनवायरनमेंट पे बात करता है. क्या जायज है, क्या होना चाहिए, क्या मिसकंडक्ट है, मिसकंडक्ट का पनिशमेंट क्या है, कैसे ग्रीवियंस रिड्रेसल होना चाहिए, ये सारी चीजें स्टैंडिंग ऑर्डर में ही. अपॉइंटमेंट टर्म्स क्या हो सकते हैं, एवरीथिंग इज इन स्टैंडिंग ऑर्डर. So it is model standing order or a standing order of your own organization. This I am leaving for you to read. Okay. Any question or query discussed in any of the upcoming sessions, right? I'll share this entire presentation with all these 5 acts. Okay, I'll make a PDF and I'll put it on the group. Download and read. Tomorrow, madam will take the class. So she will continue with the topic what she was having. We will have our class on 31st. On Wednesday evening, we will have our class. है ना, बीच में एक हमने last week. Sorry? At the same time, sir? Yes, yes. I think it is preferred to everybody. Yeah. है ना, it is weekday, बुधवार है, I think 31st. तो उस दिन शाम को we can connect. Okay. So those who are present, they know. Those who are absent, you may tell them. Okay, put it on the group that we have a class on 31st. Timing 6 to 8, 15-20 मिनट आगे पीछे. ठीक है ना? Or if you are ready, we can start at 5 to 8. थोड़ा सा लंबा करके and then we can have the HR analytics का पूरा जो portion है उसको हम complete कर सकते हैं. है ना? So on 31st, let us connect at 5:30. Okay, and 5:30 to 8, 8:30, whatever it permits. आपकी सहन शक्ति सुनने की और मेरी बोलने की और उस टॉपिक का कंटेंट. अगर ये सब अनुमति देगा तो उस दिन आधा घंटा या 1 घंटा ज्यादा करके we will try to sum up that particular point. है ना? HR analytics पे बात करेंगे. So on data management. Okay. Any question for the day? नहीं. समझ में नहीं है क्या पूछे? आ गया सर. You are very confident. मना करूंगा तो सर फिर से बोलना शुरू करेंगे. इससे अच्छा बोल दो, समझ गए. वैसे 8:30 बज गया, खाने का टाइम हो गया, निकले. आप तो बोलोगे नहीं कि सर जाओ, सर को बोलना पड़ेगा. अपूर्वा एब्सकॉन्डिंग, नेट पैक खत्म हो गया उसका आज. So anyway, if there is no question, we may decide to call it a day. No questions? Thank you, sir. Okay, good night. Enjoy your Sunday. और जो बाकी को सैटरडे बच गया थोड़ा बहुत, enjoy. Bye bye. See you tomorrow. See you on 31st.